Good morning, dear students. Welcome to Parmar Academy, your own learning channel where learning is fun. Greetings of the day. Today we will start chapter number 6, Manufacturing Industry of class 10th Geography. So, start. Just bring your copy and pen and try to write everything which are provided you in a slide so you can learn everything very quickly and easily. So, moving to our first slide. In this chapter, we will cover the following topics. Just make sure that bring your copy and write down everything which are highlighted. Okay. Just wait for a minute, beta. Yes. Okay. Very good. Yes. In this chapter, we will cover the following topics. First, the importance of manufacturing industries. The second, contribution of industry to the national economy. And the third, industrial location. Fourth, classification of industry. Fifth, distribution of industry. Sixth, industrial pollution and environmental degradation. And the seventh, the last, how to control, how to take care of our environment. So just bring your pen and take a screenshot and moving ahead. Okay. The first topic which we have to cover, importance of manufacturing. Before starting this, we need to know about manufacturing. What is manufacturing? Manufacturing is a process of converting raw material into a valuable product. मीन्स जब हम किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो सकता है, जब हम उसको कच्चे माल से मूल्यवान या क्या फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. ओके, गॉट माय पॉइंट बेटा? ओके, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट. ओके, मूविंग अहेड. Yes, just make sure. Okay. What are the importance of manufacturing? What is the importance of manufacturing? Why we need to increase our manufacturing? Okay. The first, it reduce dependency on agriculture. जो agriculture पे हमारा जो इकोनॉमी पूरा आश्रित है या डिपेंडेंट है, उसको ये रिड्यूस करता है, कम करता है. ये जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करता है. द सेकंड, क्रिएटिंग जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट्स. आप देखोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है. More than 40 to 50% of the people who are engaged in the secondary sector in various industries, various sectors. Okay, moving ahead, reduce regional disparity in term of development. अगर हम देखेंगे रीजनल, अलग अलग एरिया में अलग अलग रिसोर्सेज एलोकेटेड है, इनको कम, इस रिसोर्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस या उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम भी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है. मूविंग अहेड, expand trade and commerce. By manufacturing, we can export our goods and services from India to another country, from two parties, between two parties or between two states. Means मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही जब हम अपना सामान, जब हम अपना वस्तु, जब हम अपना माल को बना लेते हैं, उसके बाद उस माल को ट्रांसपोर्ट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो तभी होगा जब हमारे पास पहले से गुड्स हो, हमारे पास मार्केट हो, हमारे पास कंज्यूमर हो, अच्छे कस्टमर्स हो, तभी हम उसको मार्केट तक पहुंचाएंगे. मींस कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ट्रेड को और कॉमर्स को बढ़ावा देता है. ओके, मूविंग हेड, इंक्रीज इन प्रोस्पेरिटी. ऑफ कोर्स, वट एवर द वर्क वी आर डूइंग टू अर्न मनी, जो भी हम काम करते हैं उसका मेन मोटो होता है मनी को अर्न करना है. ये कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कंट्री की इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, कंट्री में प्रोस्पेरिटी को लाता है. सो वी कैन से दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डेवलप द नेशन, टू गेट मोर इनकम फॉर द नेशन. मूविंग अहेड, beta, you can just take a screenshot of this for better learning experience. Okay, very good. Moving ahead, moving to our next slide, we will now study the contribution of industry to the national development या national economy. अगर हम बात करें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स अवर नेशनल इकोनॉमी. इफ वी टॉक अबाउट द टोटल कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज बीन इंक्रीज आफ्टर 1990s. अगर हम देखें 1990s के बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है. आपके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 1980s 1990s के सीरीज के बीच में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करने का कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनी को जब तक हम इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में नहीं बुलाएंगे तब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता. तो उन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को कहते हैं अडॉप्ट करा, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया कि कोई भी कंट्री, कोई भी
फॉरेन कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार आप देखोगे इंडस्ट्रियल का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 27% ऑफ दैट जीडीपी कंट्रीब्यूट ऑफ जीडीपी में 27% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में पर्टिकुलरली तो हम देखेंगे 17%, जो 17% जो कंट्रीब्यूशन है वो अकेले आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है या इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। बाकी का जो 10% है वो आपका माइनिंग, क्वायरिंग इस सेक्टर से आता है। माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, नेचुरल गैस, ऑयल एंड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इनसे हमारा 10% का जो इनकम होता है वो जनरेट होता है। वेरी गुड बेटा, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। अब हम आगे देखें, मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन राइज एट अ पेस ऑफ 9 to 10% पर ईयर। अगर हम देखें 2003 के बाद हर साल 9 to 10% की ग्रोथ के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे आगे ग्रोथ करते ही जा रहा है। इसके अलावा आफ्टर 2014 मेक इन इंडिया मींस कि फॉरेन कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने मेक इन इंडिया का एक लोगो, एक हमने कल स्लोगन दिया है जिसके तहत हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ओके बेटा, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। इवन आफ्टर 2014 वी हैव डेवलप्ड द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल NMCC वाज फॉर्म्ड। NMCC का जो मेन काम यही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, डेवलपमेंट निकालना, डाटा निकालना और कल ग्राफ हमें शो करना कि पर्टिकुलर ईयर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितने तेजी से हुआ और कितने परसेंट हुआ है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यस, नाउ वी विल फाइंड आउट द नेक्स्ट टॉपिक, द इंडस्ट्रियल लोकेशन। कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो इंडस्ट्रियल लोकेशन। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन? कौन कौन से फैक्टर है जहां पर एक इंडस्ट्रियल लोकेट करना है? सपोज आपसे एक एग्जांपल लिया जाता है अगर हम पंजाब में एक आयरन एंड स्टील प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं, क्या वो आयरन एंड स्टील प्लांट क्या जनरेट कर प्रोडक्शन दे पाएगा? क्या वो प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में रहेगा? ऑफ कोर्स ही बेटा नो, क्योंकि पंजाब में आयरन ओर है ही नहीं, कहीं पर मिनरल रिसोर्सेज है नहीं, यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स ही बात है आयरन एंड स्टील प्लांट को लोकेट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस कहां पर हो, जहां पर रॉ मटेरियल, जहां पर हमें आयरन इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल वो अवेलेबल हो। और ऐसा इंडिया में कहां पर है? आपको ऑफ कोर्स सारे बच्चों को पता है, छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो इज अ फेवरेबल एरिया टू इस्टेब्लिश एन आयरन एंड स्टील प्लांट। तो इस प्रकार से हम अगर हम एक राइस मिल की बात करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल मिल की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात है हम पंजाब में अगर सेटअप करेंगे तो वो हमारा सक्सेसफुली रन होगा, वो हमें प्रॉफिट देगा, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में जो भी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा सामान हमें यहाँ पर इजिली अवेलेबल हो जाता है। मूविंग अहेड, अगर हम देखें कौन कौन सी चीजें जो इन्फ्लुएंस करती है, सबसे पहले हम देखेंगे रॉ मटेरियल। Availability of raw material is very much essential, but whenever we establish our industry we have to look forward about the raw material which needed to the industry। हमें जब भी कोई इंडस्ट्री लोकेट करनी है सबसे पहले हमें देखना है जो इंडस्ट्री लग रही है, जो इंडस्ट्री हम स्टैब्लिश करें उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल नियर बाई एरिया में अवेलेबल है कि नहीं है। सेकंड, पावर रिसोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के तारीख में आप कोई भी इंडस्ट्री में चला जाओ वो पावर के बिना चलती नहीं है। वो एक टाइम था जब हैंडमेड या हैंड के द्वारा मशीन चलती थी, अब सारा जो काम है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू है। तो पावर रिसोर्सेज शुड बी देयर, प्रॉपर पावर 24/7 इंडस्ट्री में 24/7 पावर रिसोर्सेज का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी मशीनरी गुड्स हैं वो सारे 24/7 इंडस्ट्री में रन में रहते हैं। नेक्स्ट, लैंड रिलीफ फीचर। कभी माउंटेन में आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर सकते, आपके लिए सबसे बड़ा रिलीफ फीचर में है लैंड। प्रॉपर प्लेन एरिया होना चाहिए जहां पर इंडस्ट्री को हम लोकेट कर सकते हैं, वहां पर हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्लेन एरिया होगा वहां पर आपको वाटर अवेलेबल भी इजीली हो जाएगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा और मोर ओवर हमें चीप लेबर भी अवेलेबल हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, देखो जब तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा ही नहीं तो हम रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचाएंगे? अगर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन भी कर लिया तो हम मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें एक गुड नेटवर्किंग ऑफ रेलवे, रोडवे का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इवन अगर हमारे पास सी पोर्ट्स, अगर हमारे पास वाटरवे है तो वो भी बहुत ज्यादा कंसिडरेबल हो सकता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फाइनल गुड्स है उसको प्रोड्यूस करते मार्केट तक पहुंचाने के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूविंग लेबर, अगर हम लेबर की बात करें, वी नीड 2 टाइप्स ऑफ लेबर। हमें लेबर भी 2 प्रकार के चाहिए, हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए, हमें अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए, चीप लेबर चाहिए हमें। वी नीड
चीप लेबर। व्हाई डू वी नीड अ चीप लेबर? अगर हम बात करेंगे एक इंडस्ट्री को हम सेटअप करते हैं, सपोज हम एक इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं कनाडा में, कनाडा के किसी भी एक वेल नोन टाउन टोरंटो में हम एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। वहां पर जो पीपल है, वहां पर जो लेबर होंगे, लेबर की जो डिमांड होगी, सैलरी होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। वही अगर हम किसी सिंस डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग नेशन में अगर इंडस्ट्री सेटअप करते तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, तो ऑफकोर्स ये बात है लोग कम वेजेस में, कम दाम में या कम वेजेस में भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या चीप लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आप देखोगे जितने भी हमारे 7 इंडस्ट्रियल जोन है, 7 इंडस्ट्रियल जोन उन एरिया में लोकेटेड है जहां पर हमें चीप लेबर अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा लेबर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्किल्ड और एक होते हैं अनस्किल्ड। स्किल्ड लेबर आर लाइक इंजीनियर्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मशीनरी गुड्स को चलाने के लिए काम करते हैं। अनस्किल्ड लेबर जो होते हैं वो वर्क फोर्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेबर के रूप में वहां पर इंडस्ट्री में वो अपना वर्क, अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मूविंग अहेड, कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैपिटल, माया, पैसा। पैसे का बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए आपके पास अच्छा कैपिटल होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर वहां पर पास में होना चाहिए, जितना बड़ा बैंक, इंश्योरेंस कंपनी पास में होना चाहिए, ताकि हम अपने जो कैपिटल को, फॉर्मेशन को सिक्योर भी कर सकें और उसको जनरेट भी कर सके, उसका ट्रांसफर कर सके, हम उसको सर्कुलेट में रख सके। ओके, मूविंग अहेड, मार्केट। माल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग जितना मर्जी आप प्रोडक्शन, जब तक आप उसको कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा रहे, जब तक आप उसको मार्केट तक नहीं पहुंचा रहे, तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको जल्द से जल्द मार्केट, कंज्यूमर तक पहुंचाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो थ्रू होता है मार्केट। तो हम कहेंगे वंस मोर, हम एक बार रिकैप करते हैं, बेटा जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, आप यहां पर लैंड के साथ वाटर भी लिख सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कनेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। गॉट माय पॉइंट बेटा? 5 4 3 2 1, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, यस, वेरी गुड। मूविंग अहेड, अगर हम आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, यू विल गेट 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। आपको इस टॉपिक में से 3 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए बड़े ध्यान से इसको सुने। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का वर्गीकरण। मैंने बच्चों को बांट दिया, कुछ बच्चे शरारती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दे दिया, मैंने कहा ये शरारती बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने उनको भी बांट दिया। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे, इंटेलिजेंस भी बहुत है, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड एकेडमिक के बेस पे। कुछ बच्चे कल्चरल इवेंट में बहुत अच्छे, तो मैंने उनको भी अलग कर दिया, 1 2 3, मैंने क्लासिफाई कर दिया। वैसे ही मैंने इंडस्ट्री को क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। किसके बेस पे किया? एक को मैंने शरारती के बेस पे किया, एक को मैंने एकेडमिक के बेस पे किया, एक को मैंने स्पोर्ट्स के बेस पे किया, और एक को मैंने करा उसके कल्चरल इवेंट के बेस पे। तो वैसे मैंने इंडस्ट्री को 3-4 बेस पे मैंने क्लासिफाई किया। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल आर वी आर गेटिंग, कौन कौन से रॉ मटेरियल, किस प्रकार के रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन हो रहा है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कम किया है कि ज्यादा किया है, 50% किया है, 50 करोड़ किया है, या 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्या हमने पार्टनरशिप में किया है या ज्वाइंट कोऑपरेटिव सेक्टर में किया है या इंडिविजुअल फॉर्म के रूप में आपने इंडस्ट्री का लोकेशन किया है। The next, on the basis of on the basis of size, अगर हम बात करें साइज के आधार पर, इंडस्ट्री आपको छोटा इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्री है या सुपर लार्ज इंडस्ट्री है। तो चलो मूविंग अहेड हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, फर्स्ट इंडस्ट्री इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि पर आधारित इंडस्ट्री, कृषि पे आधारित उद्योग। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आर दोस इंडस्ट्री वेयर द रॉ मटेरियल आर टोटली गेटिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर हमारा जो इंडस्ट्री का जितना भी रॉ मटेरियल है वो कहां से आता है? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, कृषि आता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के लिए आपको शुगर केन चाहिए, जो आपको कहां से अवेलेबल होगा? आपको अवेलेबल होगा किसानों भाई बहन से, हमारे किसान भाई बहन से मिलेगा, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कॉटन जो है हमें कहां से मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। अगर हम कहें इडेबल ऑयल्स की, सरसों, मस्टर्ड, कहां से मिलेगा? हमें एग्रीकल्चर से। दीज आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि पर आधारित इंडस्ट्री। वेरी गुड। मूविंग अहेड,
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को हम टू टाइप में क्लासिफाई करेंगे, मेटलिक मिनरल और एक हम करेंगे नॉन मेटलिक मिनरल। मेटलिक मिनरल में हम कहेंगे जो रिसोर्स है, जो रॉ मटेरियल है, वो हमें कैसे मिलेगा, एज एन आयरन ओर। आयरन ओर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए हमें क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए, हमें कुकिंग कोल चाहिए। ये क्या है, ये मेटलिक मिनरल्स हैं। अगर हम बात करें सीमेंट इंडस्ट्रीज की, सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉक चाहिए, हमें चट्टाने चाहिए बड़े बड़े, ठीक है। इसके अलावा हमें कुकिंग कोल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मिनरल हो गया। ऑन द बेसिस, जिस मिनरल के बेसिस पे हम जब इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं उसको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड, खनिज पर आधारित इंडस्ट्री। ओके, मूविंग अहेड, हम कैपिटल के बेस पे बात करेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसने बहुत पैसा लगा दिया। सबसे पहले कहेंगे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का आप एक एग्जांपल लो, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आप देखोगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन क्या लार्ज है, ह्यूज है, हैवी और बल्कि प्रोडक्शन कर रहा है। तो हम इन इंडस्ट्रीज को कौन सा इंडस्ट्रीज कहेंगे, हम इनको कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इंप्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें ना, बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम इनको कौन सा इंडस्ट्री कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कटुर उद्योग, हम जिसको कहते हैं कटुर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं। जब हमारा इन्वेस्टमेंट नियर बाय 50 लाख टू 1 करोड़ होगा, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक jewelry making, you can take pot making, you can take example of like कैंडी फैक्ट्री, ईंट की भट्टी, आप कह लो कि ब्रिक बनाने वाला जो इंडस्ट्री है, हम इनको किसमें कंसीडर करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मूविंग अहेड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर हम ओनरशिप की बात करें, भाई ये कंपनी तो मेरी है, तो क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअल इंडस्ट्री, या हम इसको कहेंगे प्राइवेट इंडस्ट्री। इंडिविजुअल से अच्छा हम इसको एग्जांपल लेंगे एज एन प्राइवेट इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट इंडस्ट्री। प्राइवेट इंडस्ट्री विच आर ऑन बाय अ इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट ग्रुप्स के थ्रू या किसी इंडिविजुअल के थ्रू जो कंपनी ऑन किए थे। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज ऑटोमोबाइल्स, ओके, टाटा कंपनी, ये सब क्या है, इंडिविजुअल कंपनी है, इनको हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कहेंगे या प्राइवेट इंडस्ट्रीज कहेंगे। मूविंग अहेड, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच हैज बीन टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें टोटल कंट्रोल किसका होता है, सरकार का होता है, गवर्नमेंट को होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन कोच मैन्युफैक्चरिंग, टाटा, इसको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सियाल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका पूरा स्टेक होल्डर किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। हम इस कंपनियों को कौन सा कहते हैं, इनको हम कहते हैं गवर्नमेंट बेस या फिर हम कहेंगे पब्लिक इंडस्ट्री। गॉट माय पॉइंट बेटा, वेरी गुड, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। मूविंग अहेड, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर मतलब कि दो लोगों का ज्वाइन, मतलब कि दो लोगों ने पार्टनरशिप में कर लिया, भाई पार्टनरशिप में काम कर लिया। कैसे, मारुति कंपनी सुजुकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया, बना दिया मारुति सुजुकी, क्या हो गया, ज्वाइंट सेक्टर, दो इंडस्ट्री का ज्वाइन हो गया। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कौन सा कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जहां पर पार्टनरशिप, दो कंपनी एक साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेशन जो बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के कॉर्पोरेशन से चल रही है। अमूल, AMUL, अनंतपुर मिल्क यूनियन लिमिटेड जो कंपनी है, वो 15 लाख लोगों के कॉर्पोरेशन से चल रहा है। जो आपका प्रोडक्शन है, आप वेरका मिल्क यूनियन की बात कर लो, आप सरस मिल्क यूनियन की बात कर लो, ये सारे कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जांपल हैं। गॉट माय पॉइंट बेटा, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वेरी गुड। मूविंग अहेड, ऑन द बेसिस ऑफ द फिनिशिंग गुड्स, हमारे पास जो फिनिशिंग गुड है वो कैसे गुड्स है, एक आता है आपका हैवी इंडस्ट्री और एक आता है लार्ज, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज में कौन से इंडस्ट्रीज आएंगे, जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जैसे कोई इंडस्ट्री के लिए वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे अच्छा एग्जांपल है हैवी इंडस्ट्रीज का। आप इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देते हो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल का एग्जांपल ले सकते हो। आप एग्जांपल ले सकते हो इंडियन कोच फैक्ट्री, इंडियन रेलवे कोच फैक्ट्री, IFC जो है इंडियन कोच फैक्ट्री का आप एग्जांपल ले सकते हो। ये हैवी इंडस्ट्री में। लाइट इंडस्ट्री में आता है जो प्रोडक्शन होता है वो छोटा छोटा प्रोडक्शन होता है, छोटे वस्तु का, स्मॉल प्रोडक्ट, स्मॉल थिंग्स का प्रोडक्शन होता है। गॉट माय पॉइंट बेटा, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यस, वेरी गुड। 5 4 3 2 1, यस, ओके, वेरी गुड। मूविंग अहेड, यस,
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, ओके। ओके, व्हाट डू मीन बाय एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्री विच गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। जहां पर इंडस्ट्री का जो कच्चा माल है वो कहां से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। ओके, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल, जूट, वूलन, सिल्क, सिंथेटिक टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री आर example of agro based industry. The first industry which we have to cover in your syllabus, जो पहला इंडस्ट्री जो हमें आपके सिलेबस में है, जिसको हमें करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, ठीक है ना। अब यहां पर देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एक बहुत ही सुंदर, यहां देखो यान बनाया, थ्रेड, इसको कहते हैं यान, थ्रेड बनाया हुआ। देखो यहां पर हम प्रोसेसिंग देखेंगे, प्रोसेसिंग कैसे होती है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका कॉटन है, कॉटन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग बनने के उससे थ्रेड बनता है, धागा बनता है। स्पिनिंग के बाद वेविंग होता है, जिसमें वो फैब्रिक बनता है, फैब्रिक मतलब कपड़ा बनता है। उसके बाद हम करते हैं डाइंग। उसमें क्या करेंगे? हम उसमें कलर करेंगे, ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, जैसे भी डाइंग का प्रोसेस होगा। डाइंग के बाद क्या होगा? वो एक फैब्रिक बन जाएगा। फैब्रिक को हम फैक्ट्रीज में या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहुंचाएंगे और बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लॉथ में, कपड़े के रूप में, जो हमारे पास अवेलेबल होता है। फाइनल गुड्स के हमारे पास क्लॉथ हमारा फाइनल गुड्स है, जो हमारे पास इंक्लूड होगा, जो हमारे पास पहुंचेगा। ओके, मूविंग अहेड, अगर हम बात देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कॉटन टेक्सटाइल की बात करेंगे, इट ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हम इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर की बात करेंगे। आपको मैंने बताया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% कंट्रीब्यूट करता है। आपका जो जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूशन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, जिसमें से अकेला 14% जो है वो देता है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन विच मोर देन 35 मिलियन पीपल्स, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 35 मिलियन पीपल्स आर एंगेज इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अगर आप बात करें इंडस्ट्री की तो आप देखोगे आज हमारे इंडिया में नियर बाय 80 टाउन्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अगर हम मैन्युफैक्चर की बात करें तो ज्यादातर आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एलोकेट है महाराष्ट्र गुजरात बेल्ट में। गुजरात का एक बहुत ही फेमस शहर है जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में, अकेले अहमदाबाद में 63 मिल्स, नियर बाय 60, एज पर 2004 सेंसस, अगर 2004 सेंसस की बात करें, अकेले अहमदाबाद सिटी में 63 से भी ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल के मिल हैं। अब तो 2022 चल रहा है तो मे बी ये इंक्रीज हो गए होंगे और जगह। तो सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन वो काम पर है अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र बेल्ट में। गॉट माय पॉइंट बेटा? यस, वेरी गुड। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें अहमदाबाद में सबसे ज्यादा या गुजरात या महाराष्ट्र बेल्ट में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कहते हैं अलोकेट होने का क्या करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा मोल्ट करके, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं भाई, क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, मोल्टेड क्वेश्चन आएगा। व्हाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात बेल्ट? क्वेश्चन आएगा क्यों महाराष्ट्र और गुजरात में ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है। आप देखोगे फाइनेस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फाइनेस्ट रॉ मटेरियल, सबसे अच्छे प्रकार के जो कॉटन है उनका प्रोडक्शन कहां पर है? गुजरात में। सेकंड, आप देखो चीप लेबर, वहां पर चीप लेबर मिलेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन इतना फेवरेबल है कि कॉटन का इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र गुजरात की बात करोगे तो वहां पर आपको कौन सा सॉइल मिलेगा? ब्लैक सॉइल मिलेगा, विच इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, जो फेवरेबल है किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल के ग्रोथ के लिए। ओके, मूविंग अहेड, पावर सप्लाई, वाटर रिसोर्सेज। अगर वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, अच्छे खासा मात्रा में वहां पर वाटर रिसोर्स भी अवेलेबल है और पावर रिसोर्सेज आप देखोगे आपके गुजरात में पावर रिसोर्सेज बहुत अच्छे, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 अवेलेबल होते हैं और मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गुड कनेक्टिविटी ऑफ एयरवे, वाटरवे, रोडवे एंड रेलवे, सारे ही कनेक्टिविटी वहां पर बहुत अच्छे, विच मेक्स दिस एरिया, दिस रीजन फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गॉट माय पॉइंट बेटा? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, मूविंग अहेड, यस, ओके। इंडस्ट्रीज आर क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज। ऐसी ये जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने और भी इंडस्ट्री को जन्म दिया है।
लाइक अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, कपड़ों में कलर करना है, कलर करने के लिए आपको क्या चाहिए, कलर करने को आपको चाहिए डाइंग। डाइंग ने किस चीज को, कौन सी इंडस्ट्री को बूस्टअप दिया है, केमिकल इंडस्ट्रीज को, केमिकल इंडस्ट्रीज को उसने बूस्ट करा है। आप बात करोगे पैकिंग, जो कपड़ा मटेरियल आपका प्रोड्यूस हो चुका है उसको पैकिंग करना है, तो पैकिंग मटेरियल्स के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग वर्क्स को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने क्या कहते हैं बूस्टअप करा है। बात करें अगर हम इंडिया की, तो सबसे ज्यादा यार्न जो हमारे इंडिया में जो फैब्रिक बनता है, जो कपड़ा बनता है, जो थ्रेड बनता है, वो हम सबसे ज्यादा कहां पर बेचते हैं, जापान में। जापान इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन यार्न। ओके, अब मूविंग अहेड अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, जो फाइनेस्ट फैब्रिक है, फाइनेस्ट क्लॉथ है, हम कहां पर बेचते हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। आप इन कंट्रीज में जाके कभी कपड़ा देना, सारा जो फैब्रिक होगा वो मेड इन इंडिया होगा। पीटर इंग्लैंड सिर्फ ब्रांड है जो सिर्फ इंग्लैंड नाम से, लेकिन वो टोटली 100% इंडियन मैन्युफैक्चरर है। ओके, गॉट माय पॉइंट बेटा। जितने भी फैब्रिक ब्रांड्स की बात करोगे, लगभग 80% इंडस्ट्री पे हमारा आपको पाइए, हमारा कपड़ा ही पूरे विदेशों में जाता है। बेशक ये रॉ मटेरियल के रूप में जाता है, लेकिन वहां पर फिनिशिंग प्रोडक्ट जो बनता है वो भी इंडियन रॉ मटेरियल का ही एक देन है। गॉट माय पॉइंट बेटा। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट जूट इंडस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे बेटा जूट इंडस्ट्रीज। आप देखोगे जूट इंडस्ट्रीज आर गेनिंग पॉपुलैरिटी नाउ डेज। आज के डेट में जूट इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी इंडस्ट्रीज के रूप में इंक्रीज हो रहा है। आप देखोगे कहां पर यूज हो रहा है जूट इंडस्ट्री, देखो थ्रेड, जूट के थ्रेड बनते हैं, ठीक है ना, बोरियां। आप देखोगे जो भी आपका सैग है, जो आपका सामान आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, राइस आ रहा है, व्हीट आ रहा है, वो कौन से सैग में आएगा, जूट बैग्स में आएगा, जूट इंडस्ट्रीज में आएगा। जूट के बैग्स, हैंड बैग्स, आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज के तहत आप पॉली बैग्स यूज नहीं कर सकते। वहां पर कौन किससे रिप्लेस किया जा रहा है, जूट बैग से उसको रिप्लेस किया जा रहा है। जूट की शर्ट्स, आप देखोगे आजकल जूट की शर्ट्स भी मैन्युफैक्चर हो रही है। जूट के प्रोडक्ट्स गेटिंग अ डिमांड वेरी हाई अ डेज। इन दिनों इनकी डिमांड क्या है, काफी बढ़ रही है। चलो मूविंग अहेड, हम पढ़ते हैं जूट इंडस्ट्रीज के बारे में, थोड़ा डीप स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम सेकंड प्लेस पे हैं। अगर इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट ऑफ जूट, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट आफ्टर बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो सेकंड नंबर पे हम आते हैं आफ्टर बांग्लादेश। वाई? 70% ऑफ जूट मिल्स, अगर आप बात करोगे 70% ऑफ जूट मिल आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल स्टेट। कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल स्टेट्स में। क्यों? अगेन द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एंड द चीप लेबर, हम ये बात करेंगे जिस कारण यहां पर हुआ है। सबसे फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टैब्लिश इन कोलकाता इन 1859। 1859 में इंडिया का जो सबसे पहला कोलकाता में कहते हैं 1859 में फर्स्ट जूट इंडस्ट्री वाज एलोकेटेड इन कोलकाता नियर बाय राष्ट्रा। राष्ट्रा जो है आज पार्टीशन के बाद 1947 में पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान बना और 1972 में बांग्लादेश बना। अब ये बांग्लादेश में चला गया। ओके, गॉट माय पॉइंट। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्रीज की, मोर देन 2,61,000 वर्कर्स आर डायरेक्टली एंगेज इन जूट इंडस्ट्री। कितने लोगों को जो रोजगार, इंप्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, 2,61,000। अगर हम बात करें 40 lakhs ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु आर एंगेज इन। इनडायरेक्टली बात करें तो हमारे पास 40 लाख से भी ज्यादा जो फार्मर्स हैं हमारे, इनडायरेक्टली जूट कल्टीवेशन में लगे हुए हैं या वो उसके थ्रू कनेक्टेड हैं। ओके, मूविंग अहेड, अगर आप बात करेंगे चैलेंजेस, जूट इंडस्ट्रीज को एक बहुत टफ चैलेंजेस मिल रहा है चाइनीज पॉली बैग से। अगर चाइनीज सिंथेटिक बैग्स की बात करें, जो आप देखोगे प्लास्टिक के कैरी बैग्स आ रहे हैं, ये इसको बहुत ज्यादा टफ चैलेंज दे रहा है। The challenges faced by the industry stuffing competition from international market। सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल मार्केट से सिंथेटिक बैग्स, आप देखोगे सिंथेटिक बैग्स आगे जो प्लास्टिक के बैग्स है वो उसको रिप्लेस करा है। क्योंकि अगर हम बात करें जूट बैग्स की तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि स्टैंडर्ड जरूर लगता है लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। वही अगर आप पॉली बैग्स की बात करो तो 1 रुपए का आपको 1 रुपीज का 1 पॉली बैग मिल जाएगा। तो ये कारण है कि लोग डिमांड में जो है पॉली बैग्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। फ्रॉम अदर कॉम्पिटिशन लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड। अगर आप बात करोगे जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है, बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस, इजिप्ट, यहां से जो बैग्स है ये भी इंडियन मार्केट को एक टफ कंपटीशन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, अगर हम देखें
हाउएवर फिर भी हम देखें जो जूट इंडस्ट्रीज का जो बूम है, जो बूस्टअप है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है पॉली बैग्स के मार्केटिंग सर्कुलेशन में। पॉली बैग्स को यूज में गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं बैन कर रखा, और इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है कि मॉनेटरी कहते हैं 100% आपको क्या कहते हैं यूज कौन सा करना है, जूट बैग्स, मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकिंग एंड स्टिमुलस डिमांड एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ द नीड। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जितने भी आपके, अगर आप एफसीसीआई के ऑफिस में जाते हो या एफसीसीआई आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जाओगे, वहां पर जितना भी स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स है वो किसमें होगा, आपको जूट बैग्स में ही मिलेगा। यही कारण है कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा बूम अप मिला है। अब देखोगे इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड टू ऑब्जेक्ट द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ improving qualities, ensuring good price of the jute to enhancing the per hectare weight। अगर हम बात करें 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बना था, जिसका मेन पर्पस था जूट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, जूट के प्राइस को मॉनिटर करना और पर्टिकुलर तरीके से इसको मार्केट में सर्कुलेट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल हो सके। अब हम देखेंगे तो मेन मार्केट इंडिया कहां पर एक्सपोर्ट करता है, यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे सबसे बड़े क्या ग्राहक है, हमारे सबसे बड़े कस्टमर है, जहां पर हमारा जो जूट है, जूट इंडस्ट्री जो है वो वहां पर पहुंचता है। ओके, अगर हम बात करें कि व्हाई जूट इंडस्ट्री इज गेटिंग पॉपुलैरिटी, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, These are eco-friendly substance। ये कौन से सब्सटेंस है, ये इको फ्रेंडली है। पॉली बैग्स कहीं ना कहीं पर आपको इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, पोल्यूशन का एक कारण बनेगा, लेकिन जूट इंडस्ट्रीज जो है, जो जूट के बैग्स है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। दैट्स वाई यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे 100% जो है पॉली बैग्स पे बैन है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जूट बैग्स का ही चलता यूज होता है। गॉट माई पॉइंट बेटा? ओके, मूविंग अहेड, अब आगे की तरफ चलते हैं। यस, take a screenshot of this for the better learning experience। okay, 5 4 3 2 1। yes, okay, moving ahead, one of the most important, अगर चीनी नहीं होगी तो मिठास कहां से आएगी, शुगर इंडस्ट्री। वी आर मूविंग टू शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें, आपके पास यहां पर एक फोटो है, ये देखो शुगर केन से हमने जूस निकाला, जूस निकाल के हमने बनाया शुगर, और शुगर पहुंच गया आपके घर में। अगर हम शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडिया स्टैंड सेकेंड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्ट्स। इफ वी टॉक अबाउट द जैगरी, अगर हम गुड़ की बात करें, खंड मिश्री की बात करें, तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जैगरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, देयर आर ओवर 460 शुगर मिल्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 460 शुगर मिल्स हैं। इसमें से जो 70%, 60 to 70% जो शुगर मिल है वो स्टैब्लिश है आपके स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बिहार और उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट शुगर मिल का एस्टेब्लिशमेंट है। व्हाई द शुगर मिल इज एस्टेब्लिश ओनली इन द बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार? द आंसर इज ऑफ कोर्स विद यू। We studied in agriculture, sugar cane is largely produced in the state of उत्तर प्रदेश। जहां पर सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो यही कारण है कि यहां पर शुगर केन का सबसे है। लेकिन नाउअडेज, अब की बात करते हैं, प्रेजेंट इराज की बात करेंगे, तो शुगर इंडस्ट्रीज आर मूविंग टू साउथ इंडिया। शुगर इंडस्ट्रीज कहां पर मूव कर रहा है, साउथ इंडिया में। क्यों? देखो भाई, देखो पिक्चर नंबर 2, यहां पर है ब्राउन शुगर केन। कौन सा शुगर केन है, ये है ग्रीन शुगर केन। कहां पर होता है, ये उत्तर प्रदेश में होता है। ब्राउन शुगर केन कहां पर होता है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। ब्राउन शुगर केन में जो शुगर की क्वालिटी है, जो स्वीटनेस की क्वालिटी, जो जूस की क्वालिटी है, वो एज कंपेयर टू ग्रीन शुगर केन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंडस्ट्री अब कहां पर मूविंग कर रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वहां पर फाइनेस्ट टाइप ऑफ शुगर केन इज अवेलेबल। ओके, मूविंग अहेड, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वेरी गुड, 5 4 3 2 1। यस, ओके, ओके, इफ वी टॉक अबाउट 60% ऑफ मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। एज वी डिस्कस, हमने अभी डिस्कस किया था, 60% ऑफ शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दिस इंडस्ट्री इज द सीजनल इंडस्ट्री। एक कमी तो इस इंडस्ट्री की भी है कि ये इंडस्ट्री सीजनल इंडस्ट्री है। शुगर मिल जो है
ईयरली सिर्फ 2 to 3 मंथ ही वर्क करते हैं, बाकी टाइम पे ये इंडस्ट्री बंद रहती है, क्योंकि शुगर केन जो है वो एनुअल क्रॉप है, साल में सिर्फ एक बार ही ये प्रोड्यूस होता है। एक बार लगाओगे, एक बार इसको शोन करोगे, तो इसका जो रिजल्ट है आपको 1 ईयर आफ्टर, 1 साल के बाद ही मिलेगा। तो इसीलिए ये सीजनल इंडस्ट्रीज के रूप में है, जो एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंजेस के रूप में आपके सामने आता है। ओके, मूविंग अहेड, in recent year there is a tendency of mill to shift in a concern of southern and the western states। मैंने आपको बता दिया कि अब जो टाइम है इन 21st सेंचुरी, अगर आज की बात करें तो आफ्टर 2000 द इंडस्ट्री हैज बीन शिफ्टिंग टू उत्तर प्रदेश टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की तरफ ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है। ओके, गॉट माय पॉइंट बेटा? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू मैप। अगर हम मैप पर की बात करें, शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो हम इसको अब मैप में एलोकेट करते हैं। ओके, वेरी गुड, यस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, जस्ट ब्रिंग योर कॉपी पेन, आप अपने कॉपी पेन निकालो बेटा। वेरी गुड, यस। नाउ बेटा जस्ट ड्रॉ अ मैप इन योर फेयर कॉपी एंड लुक एट दिस। Okay, today we will discuss about the map cotton textile. Cotton textile industry. If we talk about the cotton textile industry, we have to locate 5 major industries, 5 major cotton textile places, region. 5 major region of the cotton producing area. First of all we will moving to the, अगर हम पहले देखें, सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थन पार्ट से, ठीक है ना। नॉर्थन पार्ट में आपके उत्तर प्रदेश में है सिटी कानपुर। कौन सा सिटी है बेटा? कानपुर। कानपुर इज वन ऑफ द फेमस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। ओके, मूविंग नेक्स्ट अहेड वी विल मूविंग टू गुजरात। गुजरात में अगर हम बात करें, यहां पर है आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद इन गुजरात। इफ यू टॉक अबाउट मध्य प्रदेश, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, उज्जैन के पास एक छोटा सा शहर है, बहुत ही फेमस, इंडियाज मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, इंदौर, INDORE, इंदौर इन मध्य प्रदेश। इफ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र, अगर हम महाराष्ट्र में बात करें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड इन MUMBAI, मुंबई पुणे बेल्ट, बट यू हैव टू लोकेट ओनली मुंबई, मुंबई इन महाराष्ट्र। ओके, इफ वी गो साउथवर्ड, अगर हम साउथवर्ड की बात करें, यहां पर आपका कोयम्बटूर, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। These are the famous and the most important cotton textile mill in India. Okay, first again we will quick recap, we will again revise this. The first one is located in the Indore, the second one is located in the Kanpur, Uttar Pradesh, the third one is located in the Ahmedabad, Gujarat, the fourth one is located in the Mumbai, and the fifth one is Coimbatore in Tamil Nadu. One more, इफ वी टॉक अबाउट द CBSE, एज पर CBSE नॉर्म्स के हिसाब से देखेंगे, आपका 1 मार्क्स का जो मैप का लोकेशन है, 1 मार्क्स मैप लोकेशन यहीं से आएगा, ठीक है। ओके बेटा, गॉट माय पॉइंट? ओके, नाउ वी विल मूविंग टू अ नेक्स्ट पार्ट, द जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब हम करेंगे जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ड्रॉ दिस मैप बेटा इन योर फेयर कॉपी, प्रैक्टिस वंस अगेन, एक बार प्रैक्टिस करो बेटा। यस, वेरी गुड। Okay, if we talk about the jute production, as we know that 70% of jute is coming from the location West Bengal। आप देखोगे इंडिया का जो 70% जो जूट है, जूट इंडस्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड एट वेस्ट बंगाल, तो इसीलिए हम आप देखेंगे तो हमारा मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। कौन सा स्टेट है बेटा? वेस्ट बंगाल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द शुगर केन इंडस्ट्री, अगर हम शुगर केन इंडस्ट्रीज की बात करें तो आप देखोगे आपका जो है उत्तर प्रदेश बेल्ट। कौन सा बेटा? उत्तर प्रदेश बेल्ट। ये कौन सा बेल्ट है? शुगर इंडस्ट्री का,
sugar industries. Okay, and if we talk about jute industry, we will locate West Bengal. If we talk about sugar industry, this is located in the Uttar Pradesh belt. And now for a day, आज के दिनों में जो मॉडर्न इरा है, यूजिंग ऑफ हाई वीडिंग शुगर केन, अच्छे प्रकार का जो शुगर केन है जिसको हम कहते हैं ब्राउन शुगर केन, जो है हाई वीडिंग वैरायटी, दीज आर प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र and Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu. That's why nowadays the sugar industry is allocated in the southern belt. अगर हम आज की बात करें southern belt में sugar industries का movement हो रहा है. That's all for today, beta. Just take a screenshot of this map and try to practice the map in your fair copy, so you will know how to make map and you will be fine and you will be expert to making map. Okay, 5 4 3 2 1. Okay, beta. Just moving ahead. Yes. Okay. That's all for today, beta. We will meet in the second part of this video. Stay connected with Parmar Academy for more video. Like, subscribe to our channel Parmar Academy. Thank you.